चलिए बात करते हैं सेंस ऑर्गन्स की। सेंसरी ऑर्गन्स इसमें आई और ईयर के बारे में देखेंगे। वी स्मेल थिंग्स बाय आवर नोज, टेस्ट बाय टंग, हियर बाय ईयर एंड सी ऑब्जेक्ट बाय आईज। इसमें हम एक एक लाइन कवर करेंगे, वो विद इन अपना 12 टू 15 मिनट्स में हो जाएगा कवर। ओके, चलिए अच्छे से सुनना आप। अच्छा है, टॉपिक सिंपल है, एक आध क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, राइट। The nose contains mucus-coated receptors which are specialized for receiving sense of smell and called as olfactory receptors. These made up of olfactory epithelium that consists of three kind of cells. The neuron of the olfactory epithelium extend। अच्छा, थ्री काइंड ऑफ सेल्स होती हैं इनमें, ठीक है। olfactory receptors में बताऊंगा कौन कौन सी हैं, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। The neurons of the olfactory epithelium extended from the outside environment directly into a pair of broad bean-sized organs called olfactory bulb, which are the extensions of brain limbic system. Brain limbic system के बारे में मैंने न्यूरल वाले चैप्टर में आपको बताया था। Both nose and tongue detect dissolved chemicals. The chemical senses of gustation, taste, and olfactory smell are functionally similar and interrelated. The tongue detects taste through the taste buds containing gustatory receptors. With each taste of food or sip of drink, the brain integrates the differential input from the taste buds and a complex flavor is perceived. In the following sections, you will be introduced to the structure and functioning of the eye, sensory organ for vision, and ear, sensory organ for hearing. Right, eye कहाँ located होती है? Socket of the skull called orbits. A brief account of structure and function of human eye is given. Parts of eye: the adult human eyeball is nearly a spherical structure. The ball of eyeball is composed of 3 layers. बताया था 3 layers की होती है। External ear dense connective tissue की बनी हुई होती है, sclera बोलते हैं। The anterior portion of this layer called cornea. The middle layer called choroid contains many blood vessels जो कि bluish दिखती है, blue in color. The choroid layer is thin over the posterior two-third of the eye wall, but it becomes thick at the anterior part to form ciliary body. Right. The ciliary body itself continues forward to form a pigmented and opaque structure called iris. ठीक है, ये जो अपना colored part दिखता है ना आपको आई का, यही होता है iris अपना, ठीक है। किसी का ब्राउन होता है, ब्लैक होता है, बहुत ही कम लोगों का ग्रीन होता है और ब्लू होता है, राइट। और इसमें इस चैप्टर में आपको याद करने का ज़्यादा, इसलिए अच्छे से सुनिएगा प्लीज़। द आई बॉल कंटेन्स अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस which is held in place by ligaments attached to the ciliary body. ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है ना। अपने में रिफ्रैक्टिव पावर वगैरह आपको याद रखने का मतलब जरूरी नहीं है क्योंकि नहीं दिया है। The aperture surrounded by the iris is called a pupil. ठीक है, the diameter of the pupil is regulated by the muscle fiber of iris. The inner layer is the retina and it contains three neural cells. अच्छा, आई में 3 लेयर थी और इसमें रेटिना में भी 3 न्यूरल सेल्स हैं, तो इजी होगा आपको याद रखने में, ठीक है। फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, सबसे इनसाइड पहले देखना गैंग्लियन सेल, उसके बाद बाइपोलर सेल्स, ठीक है। रेटिना बाइपोलर होती है, बताया ना उसमें भी, न्यूरल वाले में बताया था। एंड फोटो रिसेप्टर सेल्स सबसे बाहर फोटो रिसेप्टर, देन बीच में मिडिल में बाइपोलर सेल्स, रेटिना में बात कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे अंदर गैंग्लियन सेल्स, ठीक है। एक एक करके बताऊंगा क्या होते हैं। बाइपोलर सेल्स क्या होता है इनमें, मतलब न्यूरॉन होते हैं ना बाइपोलर, और गैंग्लियन सेल्स क्या करते हैं, न्यूरॉन्स को ट्रांसमिशन करते हैं। फोटो रिसेप्टर सेल्स क्या करते हैं, ये जो अपने रोड्स एंड कोन्स होते हैं यही होते हैं फोटो रिसेप्टर, ये कलर डिटेक्ट करते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट का रोड्स करता है, कोन्स कलर्ड पार्ट आरजीबी को, रेड ब्लू और रेड ग्रीन ब्लू को देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि रेड ब्लू ग्रीन के ही कॉम्बिनेशन से सारे कलर बनते हैं। These cells contain the light sensitive proteins called photopigments. The daylight phototopic vision and color vision are the function of cones, and the twilight scotopic vision is the function of rods. ये बता दिया आपको। The rods contain a purplish red protein called the rhodopsin और visual purple भी बोलते हैं जिसको, which contains the derivative of vitamin A. In the human eye, there are 3 types of cones which possesses their own characteristic photopigment respond to RGB. The sensation of different color are produced by various combination of these cones and their photopigments.
When these cones are stimulated equally, a sensation of white light is produced. सारे cones को जब हम equally stimulate कर देते हैं तो एक white light का sensation produce होता है. The optic nerves leave the eye and the retinal blood vessels enter it at a point medial to and slightly above the posterior pole of the eyeball. अब देखो क्या कह रहा है. जो ऑप्टिक नर्व्स हैं वो आई को मतलब आई से लीव हो जाती हैं, वो ब्रेन तक जाती हैं, मिड ब्रेन तक, ठीक है ना. और जो रेटिनल ब्लड वेसल्स हैं वो इसमें एंटर करती हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई बॉल, ठीक है ना. फोटोरिसेप्टर सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन दैट रीजन आई इन दैट रीजन एंड हैंस कॉल्ड अ ब्लाइंड स्पॉट. जहाँ पे नहीं प्रेजेंट होता उसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट. At the posterior pole of the eye lateral to the blind spot, there is a yellowish pigmented spot जिसको हम क्या बोलते हैं, मैक्यूलर ल्यूटिया. येलोइश पिगमेंटेड स्पॉट को क्या बोलते हैं, मैक्यूलर ल्यूटिया. यहाँ पे सिर्फ कोन्स ही कोन्स होती हैं, रॉड्स एक भी नहीं होती हैं, कोन्स भरी हुई होती हैं. विद द सेंट्रल पिट कॉल्ड द फोबिया. अब देखना, मैक्यूलर ल्यूटिया तो येलो पिगमेंटेड स्पॉट है, लेकिन इसमें एक सेंट्रल पिट होता है, सेंट्रल में एक गड्ढा टाइप का होता है बीच में, उसको फोबिया बोलते हैं. फोबिया इज द थिन्ड आउट पोर्शन ऑफ द रेटिना वेयर ओनली कोन्स आर डेंसली पैक्ड. तो वो कोन्स डेंसली पैक्ड कहाँ है, फोबिया में. अच्छा, आप कंफ्यूज मत होना मैक्यूलर ल्यूटिया और फोबिया से. फोबिया में वो पैक्ड है, डेंसली पैक्ड है, ठीक है, कोन्स, लेकिन वो फोबिया कहाँ प्रेजेंट है, मैक्यूला ल्यूटिया में, ठीक है. इट इज द पॉइंट वेयर द विजुअल एक्टिविटी और रिजोल्यूशन इज द ग्रेटेस्ट. The space between the cornea and the lens is called aqueous chamber and contains thin watery fluid known as aqueous humor. और vitreous humor होता है लेंस और रेटिना के बीच का स्पेस, और it is filled with transparent gel called vitreous humor. vitreous chamber में क्या होता है, vitreous humor. aqueous chamber में aqueous humor. mechanism of vision. चलिए, the light rays is in visible wavelength focused on the retina through the cornea and lens generate potential in rods and cones. They generate potential in rods and cones. As mentioned earlier, the photosensitive compounds photopigments in the human eyes is composed of opsin. Opsin एक protein है, and retina, an aldehyde of vitamin A. Light induces dissociation of retinal from opsin, resulting in changes of structure of opsin. अच्छा, लाइट की वजह से किसका डिसोसिएशन किस में से हो रहा है, डिसोसिएशन ऑफ रेटिनल फ्रॉम ऑप्सिन. रेटिनल का हो रहा है ऑप्शन से, ना कि ऑप्शन का रेटिनल से, ठीक है. दिस कॉजेज मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चेंजेस. एज अ रिजल्ट पोटेंशियल डिफरेंसेस आर जनरेटेड. As a result, potential differences are generated in the photoreceptor cells. This produces a signal that generates action potential in the ganglion cell. बताया था ना, action potential ganglion cell में जनरेट हुआ किसकी सेल से, बाइपोलर सेल्स के थ्रू, ठीक है. अच्छा, फोटोरिसेप्टर सेल्स ने रिसेप्ट किया, डिटेक्ट किया, उसके बाद बाइपोलर सेल्स के थ्रू पोटेंशियल जनरेट हुआ ganglion cells में, and then retina. These action potential are transmitted by the optic nerve to the visual cortex area of the brain, जो कि मिड ब्रेन में होता है, वेयर द न्यूरल इम्पल्सेस आर एनालाइज, और अपने ब्रेन में एक इमेज फॉर्म होती है जो कि रेटिना पे होती है, बेस्ड ऑन द अर्लियर मेमोरी एंड एक्सपीरियंस. चलिए, इसके बाद बात करते हैं ईयर की. अब ईयर वाले पार्ट की बात करते हैं. द ईयर परफॉर्म टू सेंसरी फंक्शंस, हियरिंग and maintenance of the body balance. Anatomically, the ear can be divided into three major sections: outer, middle, inner. Outer ear consists of pinna, no, and external auditory meatus, जो कि कैनाल होती है, आप देख पा रहे होगे जो कैनाल है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस, ठीक है. इसमें ये हेयर्स होते हैं जो कि डस्ट वगैरह को वहीं पर कलेक्ट कर देते हैं, राइट. द पिन्ना कलेक्ट्स द वाइब्रेशन, ये है पिन्ना आपका, राइट. पिन्ना कलेक्ट्स द वाइब्रेशन इन द एयर विच प्रोड्यूस साउंड, ठीक है, पिन्ना का काम है ये. द एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस लीड्स इनवर्ड्स एंड एक्सटेंड्स अप द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. ईयर ड्रम है ये, ठीक है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनम भी बोल देते हैं, राइट, ईयर ड्रम को. दे आर वेरी फाइन hairs and wax secreting glands in the pinna, skin of pinna and the meatus. The tympanic membrane is composed of connective tissue covered with skin outside and with mucous membrane inside.
आउटसाइड तो स्किन है, आउटसाइड स्किन है, लेकिन इनसाइड म्यूकस की मेम्ब्रेन है, राइट। द मिडल ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 ऑसिकल्स, मैलस, इनकस, स्टेपिस, ठीक है, which are attached to the one another like chain like fashion। आप देख सकते हैं डायग्राम में। Malleus attached to the tympanic membrane and stapes to oval window of cochlea। stapes किससे अटैच्ड है? with the oval window of cochlea। अच्छा, stapes smallest bone होती है, ठीक है, अपने बॉडी में। The ear ossicles increase the efficiency of transmission of sound waves to the inner ear। An Eustachian tube connects the middle ear with the pharynx। अच्छा, Eustachian tube का काम क्या होता है? Equalizing pressure on either sides of the eardrum by connecting to the pharynx, ठीक है। The fluid filled inner ear called labyrinth। जो fluid filled inner ear होता है, जो fluid भरा होता है, कॉकलिया दिख रहा होगा, ये आपको कॉकलिया दिख रहा होगा, राउंडेड ऐसा पूरा स्ट्रक्चर है ये। इसमें एक फ्लूइड होता है, इसको बोल देते हैं लेबिरिंथ। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो बोनी, एक तो मेम्ब्रेनस। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनना। द बोनी लेबिरिंथ इज अ सीरीज ऑफ चैनल्स। इनसाइड दीज चैनल्स लाइज द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। इन चैनल्स के अंदर क्या है? मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, विच इज सराउंडेड बाय फ्लूइड फील्ड कॉल्ड पेरिलिम्फ। अच्छा, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ सराउंडेड है पेरिलिम्फ से, लेकिन पेरिलिम्फ किसके अंदर भरा हुआ है? बोनी लेबिरिंथ के अंदर। द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ इज फिल्ड विथ फ्लूइड कॉल्ड एंडोलिम्फ, ठीक है। द कॉइल्ड पोर्शन ऑफ द लेबिरिंथ इज कॉल्ड कॉक्लिया। द membranes constituting cochlea, the resonance and the basilar divide the surrounding fluid perilymph filled into bony labyrinth into an upper scala vestibuli and lower scala tympani, और बीच में scala media। द स्पेस विद इन कॉक्लिया कॉल्ड स्केला मीडिया। अच्छा, स्केला मीडिया किससे फिल्ड होता है? विद एंडोलिम्फ। याद रखना है आपको, एंडोलिम्फ से भरा हुआ होता है। स्केला मीडिया में क्या होता है? एंडोलिम्फ। एंडो लिख देता हूँ, आप याद रखना। चलिए, इसके बाद बात करें एट द बेस ऑफ द कॉक्लिया द स्केला वेस्टिबुलाई एंड्स एट द ओवल विंडो। अच्छा, कॉक्लिया के बेस पे स्केला जो वेस्टिबुलाई होती है, ये ओवल विंडो पे एंड होती है, ठीक है। विद द स्केला टिम्पनी टर्मिनेट्स एट द राउंड विंडो, ठीक है। स्केला टिम्पनी कहाँ टर्मिनेट होती है? जाके राउंड विंडो पे। ओवल विंडो ऊपर होती है, उसके नीचे राउंड विंडो होती है, विच ओपन्स टू द मिडिल ईयर, राइट। The organ of Corti is a structure located on the basilar membrane। अच्छा, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है। जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है वो कहाँ पे लोकेटेड है? बेसिलर मेम्ब्रेन पे। ये रही बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, ठीक है। इस पर आपको पर्पल से क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इससे देखिएगा, ठीक है। ये है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, ठीक है, राइट। बेसिलर मेम्ब्रेन में हेयर सेल्स होती हैं जो कि ऑडिटरी रिसेप्टर्स की तरह एक्ट करते हैं। द हेयर सेल्स आर प्रेजेंट इन 2 रोज ऑन द इंटरनल साइड ऑफ द ऑर्गन ऑफ कोटाई। अच्छा, जो हेयर सेल्स हैं वो 2 रोज में प्रेजेंट होते हैं, वो भी ऑर्गन ऑफ कोटाई के इंटरनल साइड पे। देखो, ये देखो, ये ऑर्गन ऑफ कोटाई इंटर साइड पे ये 2 रोज दिख रही होंगी आपको जाते हुए, एक के बाद एक, और नीचे उसके एक के बाद एक, यही हैं हेयर सेल्स, ठीक है। और राइट, चलिए, इसके बाद द बेसल एंड ऑफ द हेयर सेल्स इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद एफरेंट नर्व फाइबर्स। अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसेस कॉल्ड स्टेरोसीलिया। स्टेरोसीलिया का काम क्या होता है? स्पेस बढ़ा देना, मतलब एरिया इंक्रीज कर देना, प्रोजेक्टेड फ्रॉम द एपिकल पार्ट ऑफ ईच हेयर सेल, जिससे ज़्यादा का ज़्यादा साउंड का एब्जॉर्प्शन हो, ठीक है। अबव द रोज हेयर सेल्स इज अ थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन कॉल्ड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। The inner ear also contains a complex system called vestibular apparatus located above cochlea। cochlea के ऊपर होता है vestibular apparatus, right। The vestibular apparatus is composed of 3 semicircular canals and otolith, ठीक है, जिसमें मैक्यूला इज द सेंसरी पार्ट ऑफ सैक्यूलेंट यूट्रिकल, याद करने का पार्ट है। ई सेमी सर्कुलर कैनाल लाइज इन अ डिफरेंट प्लेन एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। द membranous canals are suspended in the perilymph of the bony canals। bony canals के perilymph में ये बता चुका हूँ। the base of canals is swollen and is called ampulla। जो base होता है canals का उसको swollen की वजह से ampulla बोल देते हैं, जिसमें एक रिज होती है, उसको बोलते हैं क्रिस्टिया एम्पुलरिस, जिसमें हेयर सेल्स होती हैं, वो साउंड का एब्जॉर्प्शन करती हैं। अच्छा, सैक्यूल और यूट्रिकल का सेंसरी पार्ट मैक्यूला,
और क्रिस्टिया। तो फाइनली जो मैक्यूला और क्रिस्टिया होते हैं वही स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं वेस्टिबुलर अपरेटस के, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर के लिए। अच्छा, बॉडी बैलेंस एंड के लिए तो सेरिबेलम भी होता है। सेरिबेलम वो अलग हो गया, बट ईयर के बेसिस पे ये होते हैं। बॉडी बैलेंस और पोस्चर को मेंटेन करने के लिए वेस्टिबुलर अपरेटस काम आता है। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में देखेंगे आप तो यही पता है कि कैसे पहले पिन्ना से आउटर ईयर से मिडल ईयर में ट्रांसमिशन हुआ साउंड का, मिड टेम्पेनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट हुई, फिर तीनों बोन्स में गया, उसके बाद इनर ईयर में कॉक्लिया में, फ्लूइड फील्ड में, लेबिरिंथ में, फिर हेयर सेल्स वाइब्रेट हुई। ठीक है, उसके बाद वेव्स और रिपल इंड्यूस होती हैं बेसिलर मेम्ब्रेन में। ये मूवमेंट बेसिलर मेम्ब्रेन से हेयर सेल्स के थ्रू टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में जाते हैं। उसके बाद से नर्व इम्पल्स जनरेट होती हैं एफरेंट न्यूरॉन में, जो कि हेयर सेल से कांटेक्ट में है। उसके बाद वो ऑडिटरी नर्व से ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जाती हैं ब्रेन के, जहाँ पे एनालाइज होके साउंड रिकॉग्नाइज हो जाता है। ठीक है, समरी आप पढ़ लीजिएगा, बस इतना ही था इसमें। चलिए, और जो डाउट है बता दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग। और इसका, हाँ, जिसका जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम पे से कर दूँगा।